أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، تراویح میں شریک اسلامی بہنوں، 1447 ہجری کا رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو پا کر ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ اس مہینے کا استقبال رمضان المبارک کی آج پہلی شب کی تراویح سے کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب لوگوں کو پورے رمضان بھر صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اس کے بعد بھی اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، اور صیام و قیام کی، تلاوت کی، صدقات کی، دعا و مناجات کی اور دوسری نیکیوں کی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے. بزرگوں اور دوستوں، پچھلے سال کے درس میں میں نے پہلی شب میں آج ہی کے دن، آج ہی کی تاریخ میں، یعنی پہلی شب رمضان کو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں سورہ مفصلات یعنی سورہ قاف سے یا سورہ حجرات سے سورہ ناس تک آپ کے درمیان پڑھوں. اس سے ایک تفسیری سلسلہ الحمدللہ کسی حد تک مکمل ہوگا کہ ہم ایک مفصلات کی تفسیر پڑھی، ان صورتوں کی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، جہری نمازوں میں، سری نمازوں میں، اور وہ سورہ قاف سے لے کر سورہ مرسلات تک طوال مفصل ہے جس کو فجر کی نماز میں پڑھتے تھے، اور سورہ عامہ سے لے کر کے سورۃ الشمس تک یعنی سورہ والضحیٰ تک آپ عشاء کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور مغرب میں عام طریقے سے قصار مفصل سورہ والضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک پڑھا کرتے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ سورہ حجرات سے مفصلات شروع ہوتی ہیں، یعنی وہ صورتیں جن میں بکثرت فصل بسم اللہ کے ذریعے فصل کیا گیا ہے، کیونکہ بسم اللہ ہی کی آمد ہمیں بتاتی ہے، یا دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ کا پایا جانا یہ بتاتا ہے کہ ایک صورت جو چل رہی تھی وہ ختم ہوئی اور دوسری صورت یہاں سے شروع ہوئی. تو وہ کثرت سے آپ دیکھیں گے کہ سورہ قاف کے بعد سے یا اس سے پہلے سورہ حجرات سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور جیسے جیسے آپ 27واں پارہ ختم کریں گے اس کے بعد 28واں آئے گا تو صورتیں اور چھوٹی ہو جائیں گی، 29ویں پارے میں نسبتاً اور چھوٹی ہوں گی، 30ویں پارے میں اور چھوٹی ہوں گی، اور بالکل آخر میں جا کر کے وہ چھوٹی چھوٹی چند آیتوں والی صورت رہے گی یہاں تک کہ سورہ ناس پر ختم ہوگا. تو یہ ایک میں نے سوچا ہے کہ اللہ کی توفیق سے پچھلی مرتبہ بھی آپ کے یہاں 5 صورتیں میں نے پڑھی تھی، سورہ حجرات، سورہ قاف، اور اس کے بعد سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید، یہ میں نے 5 پڑھی تھی. 27ویں پارے کی 4 صورتیں ہم نے چھوڑ دی تھی، سورہ الذاریات، سورہ الطور، سورۃ النجم اور اس کے بعد سورۃ القمر. انشاءاللہ تعالی یہ 4 صورتیں 8 سے 10 راتوں کے اندر ہم ان کو مکمل کریں گے. پھر ہم 28ویں پارے میں داخل ہوں گے سورہ مجادلہ سے، اور اس طریقے سے اللہ نے صحت اور عافیت سے نوازا اور رکھا تو آپ کے درمیان کوشش کریں گے کہ ہم اس سیریز کو مکمل کریں، یا جہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کروائے اس کی توفیق سے ہوگا. تو بہرحال کچھ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اب آپ کے سامنے
سورہ قاف کے بعد جو صورت آئی ہے وہ سورہ الذاریات ہے اور مکی صورت ہے. اور مکی صورت میں جیسا کہ آپ بار بار سن چکے ہیں ہم سے بھی اور دوسروں سے بھی کہ مکی صورتوں میں زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ عقیدے پر ہوتا ہے, توحید پر, رسالت پر اور آخرت پر. مضمون اسی دائرے میں گھومتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے قیامت کے وقوع پر کہ قیامت یقینی ہے اور ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم کو مر کے دوبارہ اٹھنا ہے. یہ ہمارے جسموں کے اندر, بے جان جسموں کے اندر اللہ تعالیٰ جسم پیدا کر, بے جان جسموں کو اللہ تعالیٰ جو مٹی میں مل گیا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا, یعنی ڈھانچہ بنائے گا. کن کہے گا, صرف ہو جا اور انسان ہو جائے گا, ڈھانچہ بن جائے گا. پھر اس کے اندر روح ڈال دی جائے گی. جیسے ہی اسرافیل سور پھونکیں گے اس کے ساتھ ہی یا اس کے تھوڑا پہلے ہی وہ ان کے اندر روح پلٹا دی جائے گی. تو عاد الروح الی الاجساد, الی اجسادہ, ان کے جسموں میں روح پلٹا دی جائے گی. اور اس کے بعد فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, جیسے ہی سور پھونکا جائے گا کہ ویسے سور کے ساتھ ہی وہ سب کے سب قبر سے اٹھ کھڑے ہوں گے جو جہاں کہیں ہوگا. تو یہ بعث بعد الموت یعنی جسموں کا اعادہ, جسموں کو پلٹایا جانا, پھر روح کا اس کے اندر داخل کیا جانا اور قبروں سے یا جو جہاں کہیں مڑا ہوگا وہاں سے اس کا اٹھایا جانا, یہ اس کو کہتے ہیں بعث بعد الموت, بعث والنشور, بعث والنشور اس کو کہتے ہیں. اور پھر میدان محشر میں جمع ہوں گے تو وہ حشر ہوگا, محشر ہوگا. اس طریقے سے تفصیلات آئی ہے. تو بہرحال چار بڑی مخلوقات کی اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے وقوع پر قسم کھائی ہے. ظاہر ہے کہ قسم کھانے کا مقصد قیامت کے وقوع کو یقینی بنانا ہے. قسم کھانے کا مقصد اپنی قدرت کا اظہار ہے, اور جن چیزوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں وہ چیزیں بھی اپنے آپ میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. تو جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے, ان مخلوقات کی تخلیق میں اللہ رب العالمین کی جو صناعی, جو کاریگری, جو اس کی خالقیت اور جو اس کی حکمت پوشیدہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے قسم کھائی ہے. اور پھر معاملے کی تاکید, جس چیز پر مقسم علیہ, جس پر قسم کھایا ہے اس کی تاکید مقصود ہے, یا یہ کہہ لیجیے کہ مقسم علیہ کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ قیامت حق ہے, دیکھو میری قدرت ایسی ایسی ہے. تو بھلا جو عظیم القدرت ہستی ہے جو ان مخلوقات کو پیدا کرنے والی ہے, بھلا اس کے لیے تمہارا دوبارہ قبر سے اٹھا دینا, پیدا کر دینا تمہارے جسموں کو. اور پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں سمجھیے گا کہ نیا جسم پیدا کیا جائے گا. وہی جسم جو آپ کا مرا ہے, جس سے روح پرواز ہوئی ہے, جس جسم کو مٹی نے کھایا ہے, وہی جسم پلٹایا جائے گا. اگر یہ کہا جاتا کہ ایک نیا جسم بنا دیا جائے گا, کہ نئی تخلیق ہو جائے گی, تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ تو مشرکین بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. لیکن اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو مٹی میں گلنے کے بعد ہمارے اعضاء پھر کیسے از نو وہی ہو جائیں گے جیسا پہلے تھا. یہ مسئلہ تھا. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. رجعت کہتے پہلی سی حالت کو لوٹنا. ہم پہلی سی حالت پر کیسے لوٹیں گے, یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی, عقل سے پرے ہے, بعید عقل ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کے اوپر اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے. فرمایا پہلی قسم ہے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا, قسم ہے ان ہواؤں کی جو چیزوں کو اڑائے پھرتی. ہوا چلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں گرد و غبار اڑتے ہیں, ہوا چلتی ہے تو بارش کے چھینٹے بھی اڑتے ہیں. آپ کا برآمدہ بھر جاتا ہوگا, کبھی کبھی آپ کے گھر کے اندر پانی آ جاتا ہے, یہ ہوا تیز ہوتی ہے. ہوا بدلیوں کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. جی سمندر میں ہوا کے ذریعے سے جب ہوا کا دباؤ بنتا ہے تو بادل بنتا ہے, اور پھر یہی ہوا اس بادل کو ہکاتی ہے, اور بادل میں انتہائی بھاری بھرکم پانی ہوتا ہے, اور وہ پانی کو ہوا اس کو بھگائے پھرتی ہے. جی اور اسی طریقے سے ہواؤں کی قسمیں بھی آپ جانتے ہیں. اچھا, ہواؤں کی فائدے تو بہت ہیں, آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں. جو لوگ جیومیٹری یہ کیا کہتے ہیں جغرافیہ پڑھتے ہیں یا اور بھی دوسرے سائنسی سبجیکٹ پڑھ سکتے ہیں, وہ سمجھ سکتے ہیں. یہ جو ہوائیں چلتی ہیں تو پودے ملتے ہیں, ڈالیاں ملتی ہیں, تو ان کے ذریعے ان میں شاخیں در شاخیں پیدا ہوتی ہے, کوپلیں ہوتی ہے, اور پودے کھڑے ہوتے ہیں, لہلاتے ہیں, فصلیں آتی ہیں, اس میں مذکر مؤنث پودا ایک دوسرے سے ملتا ہے. تو اس طریقہ سے
फसल अच्छी होती है और ज़्यादा होती है जी। इसमें गर्म हवाएं भी होती हैं, सर्द हवाएं भी होती है, तेज हवाएं भी होती है। यही हवाएं कश्तियों को चलाने में मुआविन और मददगार साबित होती है। बहुत सारी बातें हैं, समझा कि कुछ ठंडी हवा है, कुछ पछवा है, कुछ पुड़वा है, सबकी अपनी अपनी हिकमत है, समझा। तो कहा कि वो ज़ारियात ज़रवा, कसम है उड़ाने वालों की जो खूब उड़ाई फिरती है, यानी हवाओं की जी। तज़रूह रियाह जी, जैसे दाना या कोई चीज सूख जाए और चूरा चूरा हो जाए, भूसा हो जाए, तो हवा जब चलती है तो भूसे को उड़ाई फिरती है। तज़रूह रियाह, यही जिंदगी की मिसाल है कि हरी भरी खेती है, देखने में अच्छी लगती है, देखते देखते वो पक जाती है, किसान उसको काटता है, थ्रेसिंग करता है, उसके बाद दाना अलग हो जाता है, भूसा अलग होता है। अब तुम देखते हो कि भूसे को वो उड़ाई फिरती है, तिनकों को उड़ाई फिरती है। हवा चले तो शहर की जो चीजें होती हैं, प्लास्टिक वगैरह और कागज के टुकड़े और दूसरी तमाम चीजें, वो सब देखते हैं कि सब उड़ती चलती है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है फल हामिलात विक़रा, और कसम है बदलियों की, हामिलात जो पानी का बोझ उठाए हुए, बहुत भारी भरकम बोझ उठाए हुए। ये बदली पानी से भरी होती और उसको हकाती है कौन? हवा जी। फल हामिलात विक़रा फल जारियात युसरा, और कसम है उन कश्तियों की जो बआसानी समंदर में चलती है, जहाज में, नदी में चलती है, समंदर में चलती है। तसव्वुर कीजिए कुरान जिस वक्त उतरा था, उस वक्त कोई स्टेमर नहीं था, कोई इंजन वाला नहीं था मामला। बागबानी कश्तियां होती थी, बड़ी बड़ी कश्तियां होती थी, और उसको मल्लाह खेता था और एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचता था। इस मुहिब तूफान में, समंदरी तूफान के अंदर आप गौर कीजिए। और जब हवा उनके साजगार हो, जिस रुख पे कश्ती जा रही हो, अगर उसी तरफ हवा का बहाव हो तो फिर क्या कहना। वजरईन बिरीहिन तय्यबा, मुवाफिक हवा अगर मिल जाए तो फिर कश्ती तेज तेज चलती थी। और अगर हवा मुखालिफ सिमत से आ रही है तो जहाजराह को बहुत परेशानी होती थी और डावाडोल कश्ती हुआ करती थी, बसा औकात डूब जाया करती थी, भंवर में फंस जाती थी। और उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई, अब तो एक जहाज समंदर में चलता है, आप लोग बेहतर समझते हैं कि साहब वो तो इस वक्त जो है सो एक शहर आबाद होता है उसके अंदर, और बिल्कुल आधुनिक मशीन होती है। अब उनके चलने का ताल्लुक हवाओं से नहीं है, अब तो और पहले से भी ज्यादा अल्लाह ताला ने आसानी पैदा कर दी है, और दुनिया के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक खाने पीने की अशिया और हेवी जो चीज होती है, भारी चीज, उसके भी हमलो नकल का वाहिद जरिया इस वक्त भी पानी के जहाज भी हैं, जहाजी हैं, जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क सामान ले जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इन कश्तियों की, जहाजों की और हवाओं की, जिसके जरिए कश्तियां चला करती थी बआसानी, उनकी कसम खाई है। फल मुक़स्सिमात अमरा, और कसम है उन फरिश्तों की जमात की। अब फरिश्ते मुज़क्कर हैं कि मुअन्नस है, ये तो हम नहीं कह सकते। फरिश्ते मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं ये नहीं कह सकते, नूरानी मखलूक है, उनका काम अल्लाह ताला का जिक्र करना, उसके हुक्म की फरमाबरदारी करनी है। लेकिन फल मुक़स्सिमात, मुक़स्सिमा की जमा मुक़स्सिमात, जमा मुअन्नस सालिम इस्तेमाल किया है, मुराद हो सकता है अल जमाआतिल मुक़स्सिमात, यानी फरिश्तों की वो जमात। अरबी में जमात के हिसाब से मुक़स्सिमात सिफत लाई गई कि वो फरिश्तों की जमात जो अल्लाह ताला के हुक्मों की तक़सीम करती है। जाओ फलां के साथ ये मामला आज होना है, फलां के साथ ये मामला होना है, जाओ फलां की रूह कब्ज करो, फलां के अंदर रूह डालो जी, जाओ तेज तुंद हवा चला करके शहर को ताराज कर दो, वीरान कर दो जी, जाओ अच्छी लहलहाती हुई खेतियों को ताराज कर दो, बर्बाद कर दो। जो भी अल्लाह का हुक्म हो, किसी को बिशारत दे दो, किसी को तकलीफ का मामला कर दो। इस तरीके से जो अल्लाह ताला के शऊन और मामलात है मखलूक के ताल्लुक से, उनके बंटवारे और उनके मामलात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को डिप्यूट कर रखा है, बारिश पर रखा है, हवा चलाने पर रखा है, और मुख्तलिफ कामों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन फरिश्तों को मामूर कर रखा है, तो वो अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। ये जो चार कस्में अल्लाह ने खाई, हवाओं की, बदलियों की जो अपने अंदर पानी का बोझ लिए फिरती है, और कश्तियों की जो बआसानी समंदर के ऊपर तैरती है, और फरिश्तों की जो अल्लाह ताला के हुक्म से उतरते हैं और जहां जिसकी जो ड्यूटी होती है उसको वो अंजाम देते हैं। अल्लाह कहता है इन्नमा तुअदून लसादिक। अब ये मुक़सम अलैह, जिस पर अल्लाह ने कसम खाई, वो चीज ये कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो अलबत्ता सच है। जिस चीज का वादा किया जाता है, किस चीज का? क़यामत कायम होगी, मीज़ान अदल नसब किया जाएगा, मैदान महशर में मीज़ान अदल अल्लाह ताला लाएगा, तराजू हाजिर करेगा जिसके दो पलड़े होंगे,
तुम्हारे नेक अमल और बद अमल को अल्लाह ताला दोनों पल्ले पर रख करके तौलेगा। जजा और सजा, जन्नत और जहन्नम, ये जो सारी तफसीलात है, अल्लाह कहता है इन्नमा तुअदून लसादिक, क़यामत जिसका तुमसे वादा किया जाता है और उसकी जितनी तफसीलात है, खैर और शर और वज़न अमाल और जन्नत और जहन्नम, ये तमाम चीजें अल्लाह कहता है अलबत्ता हक है, सच है। सच का मतलब साबित बातें हैं, नो डाउट। क्योंकि जो चीज हक नहीं होती है बातिल होती है, जो चीज साबित नहीं होती है मुज़महिल हो जाती है, हक के मुकाबले में नहीं होती, उसको हम बातिल कहते हैं। वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, तो जो ठहरा होता है, जो हर शुबह से पाक होता है, जो बात सच्ची पक्की होती है, साबित बात होती है, उसको हक कहते हैं। और जो बात बातिल होती है, जो ठहरती नहीं है, वो बातिल होती है। जी, जैसे आप देखिए सुनार की भट्टी में जब सोना पिघलाया जाता है तो जो असल सोना होता है वो रह जाता है। जो उसमें मिलावट होती है वो खत्म हो जाती है। जो असली सोना होता है वह अम्मा मायन को सुन्ना वह अम्मा मायन फौनास फयम को नफा बख्श चीज उसमें रह जाती है, प्योर चीज रह जाती है। और जो खाम होता है, जो कच्चा होता है, जो मिलावटी होता है, वो खत्म हो जाता है। लोहे को डालिए, लोहा रह जाएगा, जंग उसका खत्म हो जाएगा। तो जो चीज मुज़महिल हो जाए, खत्म हो जाए, वो बातिल होती है, समझा कि नहीं, जो हक के मुकाबले में। तो सच है, यानी कोई शुबह नहीं है इसमें, जिसका तुमसे वादा किया गया। और क्या है वो चीज, क्या है जिसका अल्लाह ताला ने कहा कि सच्चा है? वह इन्न दीन लवाक़िअ, दीन के माने मजहब और दीन के माने जजा। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, यानी तुम्हारे अमलों का बदला तुमको मिलेगा, हमारे अमलों का बदला हमको मिलेगा। जी, कुल या अय्युहल काफिरून, कहिए काफिरो, ला अअबुदु मा ताबुदून, तो जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम इबादत नहीं करते, तुम्हारा दीन शिर्क है, तुम्हारा अमल शिर्क है, हमारा अमल तौहीद है, तुम शिर्क करने वाले हो, हम मोमिन मुवाहिद है। लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, तो हमारे लिए हमारा अमल। ये नहीं कि इस्लाम उनके दीन को दुरुस्त कर रहा है कि तुम अपने दीन पर रहो, नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारा। मालिक यौमिद्दीन, दीन का मालिक है, क्या माना करते हैं? रोजे जजा का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है। तो दीन के माने अमल, दीन के माने बदला, जी, दीन के माने अमल। व इन्न दीन लवाक़िअ, बदले का दिन, क़यामत का दिन, जो भी कह लीजिए। व इन्न दीना, क़यामत का दिन, क़यामत का दिन, या दीन माने बदला, जज़ा, लवाक़िअ, अलबत्ता वाक़िअ होके रहेगी। ईमान वालों को उनके ईमान का सवाब मिलेगा और काफिरों को भी ईमानों को अज़ाब से गुजरना पड़ेगा, इल्ला कि अल्लाह ताला गुनहगारों को माफ करे। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, और कसम है आसमान की जो बड़ा खूबसूरत है। देखिए तो अल्लाह कसम खाता है, आसमान की खूबसूरती देखिए, चांद, सितारे, सूरज, कितने आसमान, कितनी ये सब चीजें कि आसमान को किस कदर खूबसूरत बनाती। तो ज़ातिल हुबुक, हुबुक हबीका की जमा, खूबसूरती वाले आसमान की कसम जो इंतहाई खूबसूरत है। अल्लाह अकबर। और कुछ लोगों ने इसका माना कि मुहकम आसमान, सब अंश शिदादा, 7 आसमान अल्लाह ने बनाए तहबता, एक दूसरे के ऊपर, तिबाका, सब एक दूसरे के ऊपर तहबता है, और सबकी हैसियत गुंबद की है। निचले आसमान से बड़ा कई गुना, दूसरा आसमान उससे कई गुना, तीसरा आसमान, इस तरीके से बढ़ते चले जाइए। तो बड़े मुहकम आसमान है, पुख्ता है, कोई शिगाफ नहीं, कहीं कोई नक्श और ऐब नहीं। फरजिल बसर हल तरा मिन फुतूर, सुमरजिल बसर करते, बार बार देखो, गौर करो, कहीं आसमान में फटन सुराख नजर आता है तुमको। और ज़ातिल हुबुक का मतलब एक ये भी है, हबीका कहते रास्ते को, आसमान में देखो, रास्ते वाला आसमान है, लगेगा कि उसमें बना हुआ। ये अलग बात है कि दूरी की वजह से नहीं देख पाते। इसको आप यूं देखिएगा, पानी का किसी तालाब पर जाइए और पानी ठहरा हुआ है, बहाव नहीं है पानी के अंदर, और उसमें ठहरे हुए पानी पर जब हवा चलती है, सतह बनती है, तो उस पर लकीरें ऐसी बनती है कि आपको लगेगा कि जैसे कि पानी पर रास्ता बना हुआ है। रेतीले इलाकों में चले जाइए, ये जहां बालू और रेत का ढेर है, राजस्थान वगैरह के इलाके में चले जाइए, सहराई इलाके में चले जाइए, रेगिस्तान में चले जाइए,
تو हवाओं की वजह से रेत के तोदे के ऊपर एक रास्ता लगता है कि बना हुआ है, इतना खूबसूरत लगेगा मंजर। तो कहा कि आसमान को भी अगर देखोगे ना तो लगेगा कि बदलियों का पहाड़ खड़ा हुआ है, कहीं लगेगा जैसे रास्ता बन रहा है, ऐसा अगर गौर करोगे देखोगे तो क्या खूबसूरत है वो मंजर जो आसमान में होता है, चाहे चांद सितारों की वजह से हो या रास्ते नजर आते हो या मुहकम और मजबूत आसमान हो, ये तीनों तफसीर है। इन्नकुम लफी कौलिन मुख्तलिफ, अल्लाह कहता है कसम है उस खूबसूरत आसमान की जिसमें राहें नजर आती हैं, तुम लोग मुख्तलिफ कौल में पड़े हुए हो, मुशरिकीन को कहा जा रहा है। और यही इस बात की दलील है कि तुम झूठे हो, गलत हो। कुरान के मुतालिक कहते हो, कभी तो कहते हो कि साहब ये शेर की किताब है, कभी कहते हो कि ये कहानत है, कभी ये कहते हो कि असातीरुल अव्वलीन है, पिछले लोगों के किस्से हैं, कहानियां हैं जी, और कभी कहते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहते हो, कभी कहते हो कि ये शायर है, कभी कहते हो कि काहिन है, कभी कहते हो कि साहब नजूमी है, और कभी कहते हो कि दीवाना है। ये एक हस्ती के मुतालिक तुम सब लोगों की अलग अलग राय, ये इस बात की दलील है कि गलत हो। अगर बात ठोस होती, सच्ची होती तो सबके मुंह से एक ही बात निकलती, लेकिन सब की सब बात अगर हो, मिसाल के तौर पर अगर चार गवाह पेश हो और कहे कि साहब इन्होंने गोली चलाई थी, फलानी जगह पर गोली चलाई थी, और दूसरा गवाह को अगर अलग दूसरे गवाह से बुलाया जाए तो वो ये कहे कि नहीं 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 इसने हावड़ा ब्रिज के ऊपर गोली चलाई थी, ओहो झूठा गवाह पकड़ा गया, इसने कुछ कहा, इसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, चारों की गवाहियां अलग अलग अगर हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके झूठे होने के लिए काफी है। तो कुरान के मुतालिक अगर तुम सच्चे होते तो तुम सब मुशरिक की एक राय होती, रसूल गिरामी के मुतालिक सारे मुशरिकीन की एक राय होती, लेकिन कोई कहता नहीं ये तो शायर है। अरे शायर कहाँ है, जो कलाम पढ़ता है वो शेर की कोई किस्म नहीं है, हाँ जादूगर है, उसके कलाम में बला का जादू है, जो सुनता है वो उसका होके रह जाता है। कोई कहे दीवाना है, कोई और कहे, जिससे जो पूछो वो अपने ही कौल पर इसरार करता है। ये तुम्हारी तरफ से जो मुख्तलिफ अकवाल आ रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ताल्लुक से या कुरान के ताल्लुक से, ये इस बात की दलील है कि तुम झूठे हो, तुम मुख्तलिफ कौल में हो। और इसी मुख्तलिफ कौल में पढ़ने की वजह से अल्लाह कहता है यूफकु अन्हु मन उफिक, नबी से और कुरान से फेर दिया गया है हर वो शख्स जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने फिरना लिखा है। और किसके मुकद्दर में अल्लाह फिरना लिखता है? उसके जिसके मुतालिक अल्लाह जानता है अपने इल्म अज़ली की बुनियाद पर कि इस पर कभी, ये वो पत्थर है जिस पर कभी घास नहीं उगेगी, ये वो दिल है जो कभी अल्लाह के खौफ से नहीं लड़जेगा, इस पर कितनी भी मेहनत सर्फ की जाए ये अपनी नहुसत से, कुफ्र और शिर्क की नहुसत से बाज नहीं आएगा। जिसके मुतालिक अल्लाह ये जानता है उसी को हिदायत से महरूम करता है। फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ अल्लाहु क़ुलूबहुम, जब तुमने कजरवी इख्तियार की तो अल्लाह ने भी कहा कि चलो तुम कजरवी ही इख्तियार करते हो तो कजरव ही रहो, जलालत को पसंद करते हो तो जलालत ही पर रहो। समझा कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि साहब अल्लाह देखता है कि किस पर मेहनत करे। आप भी देखते होंगे, पढ़ाते होंगे, कोई स्टूडेंट आपके यहाँ आता होगा, बड़ी मेहनत से आप उसको पढ़ाते होंगे, यहां तक कि एक वक्त आता होगा कि आप समझते होंगे कि ये साहब हमसे तो सुधरने वाला नहीं रहा, बड़ी मेहनत हमने की, जी जान तोड़ के की, सारे मेथड हमने इस्तेमाल कर लिए, लेकिन ये बच्चा कामयाब नहीं हुआ। तो इस तरीके से, और अल्लाह ताला तो बेहतर समझता है कि कौन हिदायत के लायक है और कौन नहीं है। तो हकीकत यह है कि जिसको अल्लाह हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, यानी जिसको हिदायत के लायक न समझे उसको कोई हिदायत याब नहीं कर सकता। तो अल्लाह का फजल है कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिल इस्लाम, जिससे इस्लाम की हमें हिदायत और तौफीक नसीब फरमाई, तौहीद पे रखा, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। क़ुतिल अल खर्रासून, अच्छा देखिए, गुमराह हो गए लोग जिनके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने ये लिखा है कि ये नहीं होगा, लेकिन हम तो नहीं जानते हैं। एक मुशरिक है मिसाल के तौर पर सामने आपके आ जाए, बहुत गंदा अमल करता है, नऊज़ुबिल्लाह कुरान मजीद के साथ बदसलूकी कर रहा है, फाड़ रहा है, जला रहा है, नऊज़ुबिल्लाह उसके ऊपर गलाज़त डालता है, आप ये कह सकते हैं कि ये जहन्नमी है? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि उसका खात्मा किधर होने वाला है, किस पर होने वाला है। हो सकता है कि आज ये कैफियत हो, मरने से पहले वो तौबा इस्तगफार कर ले, इस्लाम ले आए, और जिस दिन वो इस्लाम कबूल कर लेगा उसके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे, शिर्क व कुफ्र कत्ल ज़िना सब माफ हो जाएगा। अल इस्लाम यजुब्बु मा काना क़ब्ला, इस्लाम सब का तमाम गुनाहों को बता देता है। ठीक उसी तरीके से आप उसके लिए जहन्नमी होने का फैसला नहीं कर सकते जिस तरीके से
किसी भी शख्स को देखिए कोई नमाज माशाल्लाह पांचों वक्त की पढ़ रहा है, आप ज़कात भी दे रहा है, आपके साथ रमजान के रोजे भी रख रहा है, तरावी भी पढ़ रहा है, हाजी भी है, सदका व खैरात भी करता है, लेकिन आप यकीन के साथ कंफर्म नहीं कर सकते आपकी ये जन्नती ही है। हो सकता है कि मरने से पहले कुफ्र का कलमा पढ़ ले। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि अल्लाह ताला दीन पर साबित रख, अल्लाह ताला दीन पर साबित रख, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिका व अला ताअतिक, अल्लाह खात्मा बिल खैर नसीब फरमा, है कि नहीं? तौहीद और सुन्नत पर हमारा खात्मा न हो, ये क्यों? कोई नहीं जानता कि किस पर मरेगा। तो इसलिए आप किसी भी मोमिन के लिए, जो मोमिन है, अच्छा गुमान तो रखिए और दुआ भी कीजिए, खुश होइए उसको देख करके, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हातमी तौर पर ये जन्नती है, तो इसी तरीके से आपको भी हक नहीं। हाँ, आप कहिए कि जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और इसी हालत में इनकी मौत हो गई तो ऐसे लोग जहन्नमी होंगे। ये एक उमूमी बात हुई। जो कब्र परस्त है, अगर उन्होंने कब्र परस्ती से तौबा नहीं किया और तौहीद की राह इख्तियार नहीं की, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, कब्र परस्ती करते हुए ही उनकी मौत हुई, तो वो जहन्नमी है। ये एक उमूमी ओपिनियन हुआ, लेकिन किसी मुशरिक को कहिए तू जहन्नमी है, किसी फासिक और फाजिर को कहिए कि तू जहन्नमी है, और किसी पर्टिकुलर खास आदमी नमाजी को कहिए कि ये नमाजी जन्नती है, आपको किसने बताया? इल्ला एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के लिए काफिर होने की गवाही दी हो जहन्नम की, या किसी के लिए जन्नत की सर्टिफिकेट दी हो जिसको आपने नॉमिनेट किया है, वो तो जन्नती है। उमूमी तौर पर तमाम सहाबा जन्नती हैं, लेकिन इसके अलावा किसी भी शख्स के लिए, गैर सहाबी के लिए आप ये अकीदा नहीं रख सकते हैं कि वो जन्नती है हतमी तौर पर। लेकिन हाँ, मोहसिनीन, नेक, उलमा, अच्छे लोगों के लिए हम मर जाते हैं, वो लोग तो हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारा बाप जन्नत नहीं जाएगा क्योंकि बड़ा नमाजी था, मुअज्जिन था, पांचों वक्त की इमामत वही किया करता था, नहीं कह सकते। दुआ करेंगे हम उनके लिए। चलिए, इसलिए कभी किसी भी गलत से गलत आदमी को देख करके मायूस मत होइए कि कसम अल्लाह की, अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा। लोग कह देते हैं इतना गुनाह करते हो तुम ना, अल्लाह तुमको कभी नहीं बख्शेगा। बनी इसराइल में ऐसे ही दो आदमी थे, एक ने दूसरे को कहा, एक मुत्तकी था, परहेजगार, दूसरा गुनहगार था। तो आप साथी जो नेक था वो गुनहगार को जब भी देखता गुनाह करते हुए तो दोस्ती में वो कुड़ता था, कहता यार क्या करते हो तुम, अल्लाह से डरो, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो। वो कहता था खल्लनी व रब्बी, मेरा मामला मेरे रब के साथ है, तुम जाओ ना, हमको छोड़ो मेरे रब के मामले में, हमारा मामला हमारे रब के साथ है जी। इनने कहा माँ वो इस ताली रकीबन, तुम मेरे निगरां नहीं हो, मेरे दारोगा नहीं हो। एक दफा गुस्से में आकर के तीसरी मर्तबा में शायद किसी बड़े संगीन गुनाह को देखा, उसने यही कहा कि जाओ अपना रास्ता लो, मैं जानू मेरा रब जाने। तो कहा कि वल्लाहि ला यग़फ़िरुल्लाहु लका या फला, अल्लाह ताला तुमको पर नहीं बख्शेगा। अब ये जो हतमी तौर पर जो किया और अपनी इबादत पर एक तरह से उसको उज्ब और किब्र था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को मौत दे दिया। उसके बाद पूछा उससे कि तू कौन होता था कसम खाने वाला, मेरे ऊपर कसम खाने वाला तू कौन होता था कि मैं इसको नहीं बख्शूंगा, तुमको बख्शूंगा? तो उज्ब और किब्र में मुबतला था अपनी इबादत के, इसलिए तू जा तेरे अमल को मैंने ज़ाया कर दिया। तो नामचीन था, उज्ब और किब्र का बंदा था। और तुम्हें क्या मालूम कि ये बंदा गुनाह करता था, कहता था खल्लनी व रब्बी, मेरा मामला मेरे रब के साथ है। हो सकता है कि वो आदमी अपनी चाल से, अपनी आदत से मजबूर रहा हो, लेकिन हर रात अब रब्बुल आलमीन के सामने गिरियाजारी करता हो, रोता हो, धोता हो, माफी मांगता हो, अब फिर अगले दिन जाकर के या कुछ दिन के बाद जाकर के वही गुनाह वो करता रहा। तो बहरहाल कभी भी किसी अमल करने वाले को उज्ब व किब्र में मुब्तला नहीं होना चाहिए। और किसी खास आदमी को, चाहे वो कितने ही गुनहगार क्यों ना हो, आप नहीं कह सकते हैं कि ये जहन्नमी है या ये नारी है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे देखो मुशरिक का जनाजा जा रहा है तो क्या पढ़ना चाहिए? बोलता कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, अपनी मौत को याद करो भाई, अपनी मौत को याद करो, समझा कि नहीं? जो है दिल में उसको रहने दो, क्या मालूम कि वो तौबा करके मर गया हो, समझा कि नहीं? तो उस वक्त जहां हम लोग बचपन में एक दूसरे को ये काफिर का जनाजा जा रहा है, समझा कि फी नारे जहन्नम पढ़ो, फी नारे जहन्नम, कहाँ है फी नारे जहन्नम पढ़ो, समझा कि नहीं? बहरहाल तो कहा क़ुतिल अल खर्रासून, ज़न्न तख़मीन से गुफ्तगू करने वाले, शक की बुनियाद पर बातें करने वाले, बातिल की बातें करने वाले हिलाक हो गए या हिलाक हो जाएं, जो अपनी जहालत के अंधेरे में, लहव लईब के अंदर गुम है। अल्लज़ीना हुम फ़ी ग़मरतिन, जो अपनी जहालत में, जो अपने लहव लईब के अंदर आखिरत को भुला बैठे हैं। दुनिया खेल तमाशा है कि पढ़ करके अब उन्होंने अपनी आखिरत भुला रखी है।
اور یہی ان کی گمراہی ہے کہ پوچھتے ہیں یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ دیکھیے پوچھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو جاننے کے لیے پوچھنا ہوتا ہے اور ایک پوچھنا ہوتا ہے انکار کرنے کے لیے، سمجھا؟ تو مشرکین جو کہتے تھے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ جو قیامت کا جہاز ہے یہ کہاں جا کر لنگر انداز ہوگا، کب ہوگا، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ ہاں واقعی ہوگا تو کب ہوگا۔ جیسے حضرت جبریل نے پوچھا تھا متی الساعۃ، کب قیامت قائم ہوگی، تو آپ نے جواب دیا، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے تو آپ نے جواب دے دیا کہ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ آپ ہی کے طریقہ سے نہیں جانتا ہے کہ کب قائم ہوگی۔ جیسے آپ نہیں جان رہے تو پوچھ رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ کہ جبریل نے جاننے کے لیے پوچھا تھا۔ یہ مشرکین پوچھتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی، یہ مذاق میں کرتے تھے، انکار میں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قیامت ہوگی ہی نہیں، تو مذاق کرتے تھے کب ہوگی، متا ہو کب ہوگی، ارے قیامت کیوں نہیں قائم کر دیتے ہو، لینا ہو قیامت کو۔ یہ سب جو سوال کرتے تھے کہ کب ہوگی، یہ کب جاننے کے لیے نہیں، استعلام کے لیے نہیں، استخبار کے لیے نہیں کہ کب ہوگی، نہیں ہوگی ہی نہیں، مذاق میں کہتے نا، ہاں جیسے مذاق کرتے تھے حضرت نوح کا، کہاں کشتی چلاؤ گے، کشتی بنا رہے ہو، یا تو کہیں پانی نہیں ہے، کوئی ندی نہر نہیں ہے، کہاں لے جا کے چلاؤ گے، ریت پر چلاؤ گے کشتی، کیونکہ آپ انکار کر رہے ہیں کسی چیز کا، سمجھے کہ تو کہا کہ پوچھتے ہیں یہ لوگ کہ کب قیامت قائم ہوگی، یعنی انکار کے لیے پوچھتے ہیں، یہ پوچھنا انکار کے لیے، ہاں اس دن قیامت قائم ہوگی نا، یوم ہم علی النار یفتنون، قیامت کے دن، خبر محذوف مبتدا کی، یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ جہنم پر آزمائے جائیں گے، تپائے جائیں گے، جیسے کہ آگ پر سونا رکھ دیا جائے پرکھنے کے لیے، اسی طریقے سے جہنم پر پیش کیے جاؤ گے، اعلیٰ ہے اعلیٰ عرض کے لیے، جہنم پر تم پیش کیے جاؤ گے، یعنی جہنم پر رکھے جاؤ گے، ذوقوا فتنتکم، اور جلے پر نمک پاشی جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا ذوقوا فتنتکم، اب اپنے انکار کو اور اپنے جلنے کو، جس کو جھٹلایا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ اب کوئی آدمی مصیبت میں ہو اور آپ اس کی اس غلطی کو یاد دلا کر کے کہ کہا تھا نا تم کو، اب تم نے ایسا ہی کیا، ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہو رہا ہے نا، بہت اچھا ہو رہا ہے، چکھو اپنے گناہ کو، چکھو، بہت مزہ آ رہا ہے، تم جو تڑپ رہے ہو نا، تم دیکھ رہے تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ اب آپ سوچیے اس کو کیا کہیے گا کہ جسمانی اذیت تو ہو ہی رہی ہے، آپ اس کو قلبی اذیت بھی پہنچا رہے ہیں، وہ جلے پر نمک چھڑک رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذوقوا، جی چکھو اپنے اس انکار کا مزہ جو تم کیا کرتے تھے، یا جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے کہ واقعی جہنم ہوگی، واقعی قیامت ہوگی، کب ہوگی۔ اب تو یہ موضوع آپ نے سن لیا مشرکین کا قیامت کے تعلق سے۔ اب قرآن تو مسانی ہے، ایک موضوع اگر ذکر کرے تو اس کا اپوزٹ ذکر کرتا ہے قرآن۔ اگر جہنمیوں کا ذکر آئے گا تو جنتیوں کا لازمی ذکر ہے، جنت کی صفات آئے گی تو جہنم کی آئے گی، مومن کا ذکر ہوگا تو کافر کا ذکر ہوگا، یہی قیامت خوبی ہے، اور مضمون بار بار مختلف پیرائے میں قرآن بیان کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے مومنوں کا تذکرہ، ان المتقین فی جنات وعیون، متقی کہاں ٹھہرے ہوں گے، جنتوں میں اور چشموں میں۔ کون لوگ ہوں گے جنتوں میں اور چشموں میں؟ متقی۔ معلوم یہ ہوا کہ تقوی جنت میں جانے کا سبب ہے، علت ہوئی نا، جنت میں کیوں جاؤ گے، وجہ کیا ہوگی، کیونکہ متقی ہوگے، ان المتقین، متقی ہی جنت میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے۔ کہیں پر آیا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ایک کہیں پر واحد استعمال کیا ہے، اب یہ نقطے کی بات ہے۔ جنت تو جتنی بھی جنت ہوگی، جتنی کوالٹی کی جنت ہو اور جتنے درجات ہو، سب پر تو جنت کا لفظ بولا جائے گا، اسی اعتبار سے لفظ جنت استعمال ہوا، لیکن قسمیں جنت کی الگ الگ ہوگی، کوالٹی الگ الگ ہوگی، درجات الگ الگ ہوں گے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بنایا نا سورہ رحمان کے اندر دو جنت، جی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے دو جنت، اور اس کے بعد ہے وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اور اس سے کمتر درجے کی بھی دو جنت، اور دونوں جنتوں کی نعمتوں کا الگ الگ بیان کیا ہے۔ حدیث میں ہے کیا ہے، جنتان آنیتہما من ذہب، دو جنت سونے کی ہوگی جس میں سب چیز، پلنگ مساڑی، جتنا فرنیچر، جتنی جو چیزیں ہوں گی، چمچا کٹورا، سب سونے ہی کا ہوگا، اور دو جنت ہوگی جس میں چاندی کے برتن ہوں گے، ساری کی چیزیں چاندی کی ہی ہوگی۔ تو کئی جنات ہیں، تو اس کے اعتبار سے جنات ہے جمع استعمال کیا گیا ہے، اور سب کو جنت بولتے ہیں اس اعتبار سے جنس کے طور پر جنت ہے۔
समझा कि नहीं? तो मुत्तकी ही जन्नत में जाएंगे जी, गैर मुत्तकी नहीं जाएंगे। और मुत्तकी किसको कहते हैं? जो अल्लाह के अवामिर को बजा लाए और उसकी मना करदा चीजों से बाज रहे। अब सिर्फ इतना ही नहीं कि हम इसको तकवा 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 इस्तेमाल करते, सब इबादत का मकसद है यही है। क्यों हम नमाज पढ़ते, क्यों रोजा रख रहे, क्यों तरावी में खड़े हो रहे हैं? क्योंकि हमको अल्लाह से सवाब की उम्मीद है, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, सवाब की उम्मीद है। गुनाहों से क्यों परहेज करते, चोरी चमारी नहीं करते, किसी को ठगते नहीं है, बदकारी नहीं करना चाहते, क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह के अजाब से डरते। तो अल्लाह ताला की बंदगी करना, ताअत का काम करना सवाब की नीयत से, ये है अवामिर की बजावड़ी। और जिन चीजों से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया, उन चीजों से बाज रहना अजाब के खौफ से कि अल्लाह ने मना किया है और नहीं मानते तो अल्लाह अजाब देगा, इस वजह से, इस डर से आप उसको छोड़ते हैं अल्लाह के खौफ से। तो ये है तकवा। तो दो ही लफ्ज में तकवा का मना अदा होता है कि अल्लाह के हुक्मों को बजा लाना और उसकी मना कर दे चीजों से बाज रहना। ये पूरे इस्लाम का खुलासा। तकवा की बड़ी अहमियत हुई। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व उयून, और चश्मे वाली जन्नत होगी, चार चार तरह की नहरें होंगी जी, जारी चश्मा होगा, एकदम साफ शफाफ पानी का चश्मा जी, शराब का चश्मा जी, लज्जतिन लिश्शारिबीन, पीने वालों के लिए खूब लज्जत, दूध लम यतगय्यर ताअमुहु, जिसका मजा कभी ना बदलेगा क्योंकि अल्लाह उसको पैदा करेगा, किसी जानवर के थन से नहीं निकलेगा, और बिन असली मुशफ़्फ़ा, और साफ बिल्कुल प्योर शहद की नहरें होंगी। अल्लाह, तो जन्नात में होंगे और चश्मों में होंगे। आखिज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम, उनके रब ने जो कुछ नेमतें और करामतें उनको दी होगी नेमतों की शक्ल में, उसको वो लिए होंगे। क्यों? ये जो उन्होंने लिया है, जन्नत की नेमतों को पाया है, गरज और सबब अल्लाह ताला इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, क्योंकि ये मुत्तकी लोग आज जन्नत में आने से पहले दुनिया में ये लोग मुहसिन थे। मुहसिन किसको कहते हैं? जो अल्लाह ताला की इबादत में एहसान करे। अब याद कीजिए वो हदीस जिब्रील कि पूछा एहसान क्या है? इस्लाम और ईमान तो बता दिया आपने, एहसान क्या है? तो कहा एहसान ये है अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा, ये है रग़बत और शौक की इबादत, कि आदमी रग़बत और शौक से इतना मुनहमिक हो जाए इबादत में जैसे कि वो अल्लाह को देख रहा है। और दूसरी इबादत होती है खौफ की। अब वो खौफ की ये है, अगर ये शौक और रग़बत पैदा नहीं हो तो कम से कम ये तो समझो कि अल्लाह तुमको देख रहा है कि कहां खड़े हुए हो। तो ये दूसरा दर्जा है, एक शौक और रग़बत का होता है। जब बंदे को इबादत में शौक और रग़बत होती है तो मजा आता है उसकी इबादत के अंदर। और कोई आदमी अगर पढ़ रहा हो डर से कि नहीं पढ़ेंगे तो फेल कर जाएंगे, छड़ी लगेगी, आज जो शौक और रग़बत रखता है कि वो उसको 95+ लेना है, तो आप देखिए उसकी मेहनत, उसके शौक और रग़बत का क्या करना। काहे के लिए उसको माँ बाप कहेगा, उसका टीचर कहेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि वो तो जान रहा है कि हमारा एम हाई, हमको उसके हिसाब से करना, काम करना। तो एक चीज होती है शौक और रग़बत से, एक होती है खौफ से बचने के लिए। तो शौक और रग़बत वाली जो इबादत होती है उसमें रूह और जान पैदा हो जाती है, जैसे कि बंदा अल्लाह को देख रहा होता है। तो ये इबादत के अंदर जो इखलास और हद दर्जा हुजूर क़ल्ब जो आता है इबादत के अंदर, ये इबादत के अंदर एहसान है। और फिर बंदों के साथ एहसान, कानू क़ब्ल ज़ालिका मिनल मुहसिन थे, बंदों के साथ एहसान करते थे। और बंदों के साथ एहसान क्या है, लंबा चैप्टर है, बस खुलासा ये है कि जो आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ सलूक से पेश आए, जिस चीज की आप लोग दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि लोग आपके साथ खंदा पेशानी से पेश आए, अखलाक से पेश आए, आपसे मोहब्बत से बात करे, प्यार से बात करे, आपसे कर्ज लिया है तो कर्ज अदा कर दे आपका, उसी तरीके से आप दूसरे के साथ मामला कीजिए। आप जो मामला अपने साथ किया जाना पसंद करते हैं वही मामला दूसरे के साथ कीजिए। यही है एहसान। तो अगर ये एहसान दुनिया में अगर कर रहे हैं अल्लाह की इबादत में और अल्लाह के बंदों के साथ, तो फिर खुश हो जाइए। अल्लाह कहता है कि ये जो जन्नत की नेमतें हमने तुमको दी हैं वो इस वजह से कि तुम दुनिया में एहसान करके आए थे, बंदगी भी बड़ी अच्छी की थी और अल्लाह के बंदों पर भी बड़ा अच्छा सलूक किया, के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया था। और क्या किया था? कानू कलीलन मिनल लैलि मा यहजऊन, तुम रात में बहुत कम सोते थे। कानू कलीलन मिनल लैलि मा यहजऊन, बहुत कम सोते थे, लगता था कि रात में तुम सिर्फ थोड़ा ही सोते हो, यानी बड़ा हिस्सा तुम्हारा जगने में गुजरता था। आज भी बहुत से लोगों का बड़ा हिस्सा जगने ही में गुजरता है, लेकिन मकसद अलग है। इबादत के लिए जगना, तहज्जुद के लिए जगना, तिलावत के लिए जगना और है, अल्लाह वली पर जगना, सोशल मीडिया पर जगना, इसको उलट पुलट करना, 2 बजे तक 3 बजे रात तक भी जगना अलग है। जगने वाले आज भी बहुत है, सोते कम ही है।
कानू कलीलन मिनल लैल, रात में कम ही सोते, भले ही दिन भर सो ले लेकिन रात में सोते कम है। अक्सर लोग रात भर जगते हैं या बड़ा हिस्सा जगते हैं, लेकिन मकसद में फर्क है। तो यहां रात में कम सोते थे, मतलब ये कि ज्यादा हिस्सा इबादत में गुजारते थे। अब कुछ लोगों ने कहा कि उनकी जिंदगी में दूसरा माना यह है कि शायद ही कोई रात ऐसी गुजरी होगी जिसमें उन्होंने अल्लाह की बंदगी न की होगी। ये एक दूसरा माना किया, समझा कि नहीं? तो कम से कम ये है कि साहब, कुछ लोगों ने कहा मगरिब इशा के दरमियान सुन्नतें पढ़ते थे, कुछ लोगों ने यह कहा कि इशा की नमाज बाजमात पढ़ते थे, कुछ लोगों ने कहा कि इशा की नमाज पढ़ते थे, फजर की नमाज पढ़ते थे। जैसे हदीस में है तो गोया कि आधी रात के क़याम का सवाब मिल गया इशा से, और फजर की नमाज बाजमात पढ़ी तो गोया कि पूरी रात का सवाब मिल गया। तो कई माना है इसका बहरहाल, लेकिन अगर रात का कुछ हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजर जाए तो क्या बात है। अच्छा देखिए, अल्लाह अकबर, ये मुत्तकीन मोहसिनीन बंदे रात के बेशतर हिस्से में अल्लाह के सामने रुकू सजदा करते रहते हैं। जी, क़याम है, रुकू है, सजदा है, गिरियाजारी है, और उसके बाद भी कहते हैं वह बिल असहार हुम यस्तगफिरून, और जब सहरी का वक्त होता है उनके, रात का आखिरी तिहाई हिस्सा जब होता है जिसमें अल्लाह ताला समाये दुनिया पर निचले आसमान पर हकीकी नुज़ुल फरमाता है, जबकि वो अर्श के ऊपर होता है, अर्श के ऊपर होकर के भी समाये दुनिया पर होता है हकीकी नुज़ुल, समझ लेंगे। तो उस वक्त में वो अपने गुनाहों के लिए माफी चाहते हैं। ये नहीं कहा कि फर्ज भी अदा किया, रात में तहज्जुद भी पढ़ा, हमारे पास अमल तो बहुत है, हमको माफी मांगने की क्या जरूरत है, गुनाह से माफी मांगने की क्या जरूरत है। इसका मतलब यह है कि ये शऊर और एहसास हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहना चाहिए कि हम जितनी भी बंदगी करें अल्लाह ताला का हक अदा नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इबादत करने वाला कौन है? और आप कहते थे अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक, अल्लाह तेरी तारीफ नहीं गिन सकते, तेरे लिए उतनी तारीफ व्यक्ति तो खुद अपने लिए पसंद करे। जी, नमाज हम लोग पढ़ते हैं ना, फर्ज नमाज पढ़ते हैं ना, तो क्या पढ़ते हैं सलाम फेरने के बाद? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यानी कोई कोताही हो गई हो नमाज में तो अल्लाह इसको माफ कर दे। जी, फजर की नमाज से पहले सहर के वक्त में जब आप उठ रहे हैं, तहज्जुद से फारिग हो रहे हैं, तो आप मुनाजात कर रहे हैं और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी चाह रहे हैं। बताइए तो, फजर खत्म कर रहे हैं इस्तिग़फ़ार पर, वबिल असहार हुम यस्तग़फ़िरून, सुबह के वक्त में वो इस्तिग़फ़ार कर रहे होते हैं। नमाज खत्म करते हैं इस्तिग़फ़ार पर, हज खत्म करते हैं तो अल्लाह कहता है सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न नास, सब अरफे से पलटो जहां से सब लोग पलटे हैं, अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न नास वस्तग़फ़िरुल्लाह, और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहो। अल-हज्ज अरफा इतना बड़ा वकूफ है, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह ताला की मग़फ़िरत चाहो। मुज़दलिफ़ा में आके लोग अपने बाप दादा के कारनामे बयान किया करते थे, तुम अल्लाह ताला के सामने गिरियाज़ारी करो, अपने गुनाहों की तौबा इस्तिग़फ़ार करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि आप दुनिया से जाने का आपका वक्त हो गया, इस्लाम फैल गया, लोग अल्लाह के दीन में जुक दर जुक दाखिल हो रहे, काम आपका तमाम हो रहा है, लेकिन काम के तमाम होने पर भी फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, अपने रब की तारीफ करो, अपने रब से तौबा इस्तिग़फ़ार करो। तो याद रखिए, कभी भी कोई शख्स अल्लाह के हक को अदा नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन वक्त वही होता है जो सहरी का वक्त होता है, जो हम जैसे कम नसीबों को तो कम ही मिलता है। रमजान की बरकत है, सहरी के लिए घंटा पहले उठिएगा, तो अगर उस वक्त में 2 रकात नमाज पढ़ करके अल्लाह के सामने आप हाथ पसारते हैं, अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं, अपनी मुसीबतों के का मदावा चाहते हैं, अपनी तकलीफों का इलाज चाहते हैं, अपनी बिगड़ी को अल्लाह से बनाना चाहते हैं, बेहतरीन वक्त है। जब आपके लिए सहरी तैयार की जा रही हो, उस वक्त आप अल्लाह ताला के से अपना रिश्ता जोड़ दीजिए। वबिल असहार हुम यस्तग़फ़िरून, ये सहरी का जो वक्त है आपके बड़ा मुबारक वक्त है। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है जन्नत जो तुमको मिली है वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, उनके मालों में साइल के लिए और महरूम के लिए हिस्सा है। वो ये नहीं समझते कि जो कमाई हमारी है, जो माल हमारा है, वो सिर्फ हमारा है, हमारे बेटों ही का है, हमारी बेटियों का है, नहीं। वो कहते हैं कि इसमें जो मांगने वाले हैं वो भी, या जो नहीं मांगते हैं महरूम है, अल्लाह की नेमतों से महरूम है, खाने खाने को तरस रहे हैं, दाने दाने को तरस रहे, कारोबार उनका उजड़ गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, आप सामने हैं उनको, लेकिन बेचारे शर्म के मारे मांग नहीं रहे आपसे, लेकिन आप जानते हैं कि वो नेमतों से महरूम कर दिए गए। इस साल उनकी फसल तबाह हो गई, उनका बाग खराब हो गया, इस साल उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, बेचारा एकदम मोहताज हो गया, लाखों करोड़ों के कर्ज में। आप ये जान रहे हैं, तो अगर जान रहे हैं कि वो शख्स महरूम है, अल्लाह की नेमतों से महरूम कर दिया गया है, आफतों का शिकार हो गया है, तो आप उसको भी दीजिए, चाहे वो आपके सामने दस्ते सवाल दराज करे या ना करे। तो साइल के मुकाबले में महरूम आया है, जो है तो मोहताज लेकिन आपसे मांग नहीं रहा है, और आप जान रहे हैं कि वो महरूम है, उसको देना चाहिए।
वफिल अर्ज़ आयातुल लिलमुक़िनीन, जमीन में निशानियां हैं तुम्हारे लिए। देखो ना, जमीन को गौर करो ना, कहीं कोई जमीन नरम है, कोई सख्त है जी। एक ही जमीन का टुकड़ा है, उसके बाग का फल कुछ और है, तुम्हारे बाग का फल कुछ और है। अल्लाह, और न जाने कितनी चीजें हैं जमीन के अंदर। आप देखिए ना, गौर कीजिए ना। आगे अल्लाह ताला कहता है कि वफी अनफुसिकुम, अपने आप में गौर करो ना कि तुम क्या हो। अल्लाह की निशानियां तुम में कितनी है। कैसे नुतफे से पैदा हुए हो तुम, और कैसे वो नुतफा खून में डाइवर्ट हुआ है, और फिर वो खून कैसे गोश्त का लोथड़ा बन गया है, और फिर कैसे सांचा बना है हड्डियों का, और फिर कैसे अल्लाह ताला ने उसके ऊपर गोश्त चढ़ाया है, और कैसे तुम्हारी तखलीक की। कितने मरहलों से तुम गुजरे हो, ये तुम खुद देखो ना। कितना चेहरे पर कितने रंग उभरते हैं तुम्हारे। खुशी का कोई रंग होता है, गम का कोई रंग होता है, गुस्से का कोई रंग होता है। चेहरा एक ही है, लेकिन उसके ऊपर जो लकीरें उभरती हैं हर हालत में एक जैसी नहीं होती जी। देखिए कैफियत क्या है इंसान के अंदर, गौर कीजिए अपने आप के अंदर। वफिल अर्ज़ आयातुल लिलमुक़िनीन वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, गौर नहीं करते अपने आप में। एक से एक अल्लाह ताला की कुदरत की कारीगरी तुमको अपने आप के अंदर नजर आएगी। वफिस समाई रिज़्क़ुकुम, दो आयत आखिरी बच गई। वफिस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, और तुम्हारी रोजी आसमान में है, और वो भी जिसका तुमसे वादा किया गया है। तुम्हारी रोजी आसमान में है, मतलब कि आसमान से बारिश उतरती है तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम करेगा। बारिश ना हो तो गल्ला नहीं होगा, फल फूल नहीं होंगे जी। तो ये तो सीधा मतलब है। अब बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि रिज़्क़ से मुराद मुक़द्दर नेमत, माल, औलाद, इज्जत, जाह, दौलत, जो भी है जिसके अंदर ये रोजी भी आती है, ये सब कहाँ है? इस समा, आसमान में, यानी लोहे महफूज में अल्लाह ताला ने तुम्हारी तकदीर लिखी हुई है। तो दोनों माना अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर आ जाएगा। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, वफी समाए, आसमान में तुम्हारी रोजी है अल्लाह के पास। वमा तुअदून, और वो चीज भी है जिसका तुमसे वादा किया है। क्या है आसमान में जिसका हमसे वादा किया गया है? जन्नत। जन्नत कहाँ होगी? आसमान में होगी। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जब जन्नत से निकाला तो कहा इहबितू मिन्हा, इहबितू मिन्हा, इस जन्नत से जाओ, नीचे नीचे जाओ, नीचे जाओ। फबूत कहते हैं ऊपर से नीचे। हवाई जहाज जब ऊपर से नीचे आता है जमीन पर लैंड करने के लिए तो कहते हैं हबतत तायरा, जहाज जो 40,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था अब वो जमीन पर आ रहा है। फबूत देखते हैं, फॉल्कन को जब उड़ाओ उसके बाद नीचे डाउन हो रहा है, वो तलमार देखे, उसको कहते हैं जाओ जन्नत से, जन्नत से जाओ नीचे। तो जन्नत आसमान में, और वहां से जन्नती झांकेंगे कारे जहन्नम में, जहन्नम के गड्ढे में जी। तो जहन्नम होगी जमीन पर और जन्नत होगी, जहन्नम होगी जमीन पर और जन्नत होगी आसमान, और क़यामत कायम होगी दुनिया में। चल, तो उसके बाद आगे अल्लाह ताला फरमाता है फवरब्बिस समाई वल अर्द, कसम है रब्बुस समावाति वल अर्द के अल्लाह हो। किस चीज ने अल्लाह ताला को कसम खाने पर उभारा है कि कसम खाइए? जो हमारा खालिक है वो हमको यकीन दिलाने के लिए कसम खा रहा है। वो कह रहा है कि कसम है रब्बुस समावाति वल अर्द की, इन्नहु लहक़ुन, जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल ऐसे ही हक है जैसे बोलने वाला बोल रहा है तो समझ रहा है कि उसकी जुबान हिल रही है और वो बोल रहा है। मैं इस वक्त बोल रहा हूं तो मुझे मेरे बोलने में मुझको शक है कि मैं बोल रहा हूं? अरे मेरी जुबान चल रही है, मुझसे जो जुमले निकल रहे, अल्फाज निकल रहे, इसमें किसी को शक है? का ये बिल्कुल वैसे ही हक है जो बातें कही जा रही है जैसे कि तुमको बोलने वाले को यकीन है कि खुद उसकी अपनी जुबान बोल रही है और जो कलिमात निकल रहे हैं वो उसकी जुबान से निकल रहे हैं। अल्लाह कहता है फवरब्बिस समाई वल अर्द, कसम है रब्बुस समा वल अर्द की, इन्नहु लहक़ुन, ये बातें जो जिक्र की गई वो हक है, मिस्ल मा अन्नकुम तत्तक़ून, ऐसे ही जैसे कि तुमको यकीन होता है उन बातों पर जो तुम अपनी जुबान से निकालते हो। ये मौजू जो आज होना था वो आपके सामने आयतें पढ़ी गई थी, उनकी तफसीर हो गई। अब फिर मौजू हजरत इब्राहिम के पास जो मेहमान आए हैं और लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जो हिलाकत का सामना करना पड़ा है, ये मजमून इंशाअल्लाह ताला कल के दर्स में चलेगा। वबिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।